नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे संजीव श्रीवास्तव और आशिमा बंसल द्वारा लिखी गई बहुत खूबसूरत किताब भगवत गीता सॉन्ग इटर्नल बुक लॉन्च इवेंट की झलकियां। बता दें कि कार्यक्रम 26 दिसंबर को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के कमला देवी हॉल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर कर्ण सिंह और जैनाचार्य विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया, जिसके बाद भगवत गीता सॉन्ग इटर्नल की लेखिका ने अपने विचार व्यक्त किए। This book is an expression of love and passion towards the Indic philosophies and our scriptures, and I'm happy to finally share it with you all. Some people who have gathered here may question as to why I have chosen this topic, Gita, which is very far and remote from our subject, GST, Central Excise, Customs, and all the office work which we are generally involved with. It's a philosophical dialogue between Lord Krishna and Arjuna, and this dialogue is a complete dialogue of life. From the very birth till the very last moment, it guides us in various ways, in ways which we cannot understand and we can understand. I find that everyday actions in our office are guided by the timeless philosophy spoken by Lord Shri Krishna. Though it was spoken 5,000 years ago, yet it can be interpreted today also in a way which is relevant to us. This dialogue answers the questions that are yet to be formed in the mind and the questions which have already arisen in the heart. Each shloka is woven with other shlokas in multifarious ways. Each shloka is a continuity from the last shloka to the next shloka, and yet each shloka stands on its own ground separately also. This dialogue between Arjuna and Shri Krishna is a call for the fulfillment of our duties, whatever duties present us, whether they be in office, they be at home, or elsewhere. It's a call to the fulfillment of duty in every possible way. When Arjuna was in a state of despondency, as we often sometimes maybe in our office or in our life, when we find that we are in a state of despondency, this dialogue is a guide in those times also, and in times of peace also. It gives us a lot of happiness to go through the discussions between the two most learned people, Shri Krishna and Shri Arjuna, who are also Nar and Narayan. This book is a discussion of all these dialogues which have taken place. It is in the war front, and Dharam Kshetra and Kurukshetra, it refers to our own Dharam Kshetra, and Kurukshetra is this life which we are living. Every time an issue presents us before us, it's same thing, same dialogue, which repeats in our heart, which we need to look into deeply and understand what is the call of our duty. Gita says that the work, any action must be performed efficiently and with complete detachment. In words of Lao Tse also, do your work and step back. This is the path to serenity. Same has been said in our Gita, that do your work, but do it with detachment. Do it with full efficiency and yet be detached from the results of it, because when our focus is on the outcome, then we cannot focus on the work itself. When we are completely absorbed in the work, then we lose sight of the goal. If the sight of the goal is in our mind, then we lose our work. So if we observe that whenever we are working, we are completely absorbed in work. At that time, there is no thought of the outcome. When there is thought of the outcome, then the work has gone to the background. This is what Gita says. इसके बाद जैनाचार्य विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज ने बताया कि भगवत गीता एक प्रश्नोत्तरी ग्रंथ है और बताया जैन साहित्य भी लगभग प्रश्नोत्तरी ग्रंथ है और गीता के श्लोकों के माध्यम से जीवन में साधना के महत्व को समझाया। और क्या कुछ कहते हैं महाराज श्री, आइए आपको सुनाते हैं। गीता भी एक प्रश्नोत्तर प्रधान ग्रंथ है। जैन दर्शन का आगम सिद्धांत परमात्मा महावीर स्वामी जी और गौतम स्वामी जी बहुत सारे आगम, प्रश्न पूछने वाला एक शिष्य जिसका नाम जम्बू स्वामी
और उत्तर देने वाले श्री सुधर्मा स्वामी। तो ये प्रश्नोत्तर की शैली में लिखा गया भगवत गीता एक ग्रंथ है। उन्होंने प्रश्न पूछा अर्जुन ने, साहिब एक बात पूछना चाहता हूं, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति एक कैसे बोलता है, क्या बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है साहब, मैं जानना चाहता हूं। और इस छोटे से 3 प्रश्नों का उत्तर उन्होंने कई कई श्लोकों में दिया। अंतिम उत्तर में वो कहते हैं, यदि तुझको ब्रह्म निर्वाण चाहिए, ब्रह्म निर्वाण श्रेष्ठतम आत्मा की स्थिति, फिर से कहना चाहता हूं, इनके शब्द हैं, गीता जी के शब्द हैं, एषा ब्रह्मी स्थिति ही पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छते। यदि तुझको ब्रह्म निर्वाण की स्थिति पानी है तो बस शुरुआत कर, शुरुआत कर, शुरुआत कर। और यदि तूने शुरुआत नहीं की, यदि तूने मेरे कहे अनुसार उस विषय से प्रारंभ नहीं किया, तो उसका परिणाम क्या होगा, उस परिणाम की भी चर्चा इसी अध्ययन के 2 श्लोकों में, मैं वे 2 श्लोक भी आपको कहता हूं, फिर मैं अपना विषय आपके सामने रखूंगा। श्लोक संख्या है दूसरे अध्ययन की 62वीं और 63वीं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। अंतिम चीज पतन के, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते, वह नाश की स्थिति को प्राप्त करता है, और ब्रह्म निर्वाण विकास की स्थिति है। इंद्रिय किसको कहा जाता है, जब तक इंद्रियों को नहीं समझोगे, इंद्रियों के अर्थों को नहीं समझोगे, तब तक इंद्रिय संयमन शक्य नहीं। जैन परंपरा इंद्रियों के विषय में बहुत सुंदर परिभाषा देती है, और इंद्रिय और इंद्रियार्थ जैसे शब्दों से अर्थ जुड़ा हुआ है, उसी ही तरीके से इन शब्दों से इंद्रियों और इंद्रियों के अर्थों को समझने के लिए हमें परिभाषा समझनी पड़ेगी, और परिभाषा है इंद्र। इंद्रिय शब्द है इंद्रिय। इंद्रिय शब्द में मूल चीज है इंद्र। इंद्र का मतलब है आत्मा। इंद्र शब्द से इंद्रिय शब्द बनता है। इंद्र का चिन्ह इंद्रिय। जैसे कि आप भी जानते हैं, जीव को हम कहते हैं अरे यार ये तो पंचेंद्रिय है, ये चौरिंद्रिय है, ये तेंद्रिय है, ये बेइंद्रिय है, ये एक इंद्रिय है। जीव की पहचान इंद्रिय से होती है कि ये एक इंद्रिय वाला जीव है। आपके पास 5 इंद्रिय हैं, कान भी एक इंद्रिय है, आंख भी एक इंद्रिय है, नाक भी एक इंद्रिय है, जिह्वा भी एक इंद्रिय है, और त्वचा चमड़ी भी एक इंद्रिय है।
इन पांचों इंद्रियों के अर्थों यानी कि विषयों को आप लोगों को सबसे पहले वश में करना पड़ेगा, तभी आपका मन, तभी आपकी आत्मा शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध बन सकती है, बुद्धि आपकी स्थिर बन सकती है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है परमात्मा ने, कहम नु कुज्जा सामन्नम जो कामे न निवारये पय पय विषयंतो संकप्पस्स वसंगओ। कहम नु कुज्जा सामन्नम जो कामे न निवारये। जो साधक अपने कामान, अपनी इच्छाओं का निवारण नहीं करता, वो व्यक्ति साधुता का पालन कैसे कर सकता है? जो व्यक्ति काम के अधीन है, पय पय विषयंतो, कदम दर कदम उसको तो विषाद की प्राप्ति होती है। यही विषाद का क्रम भगवत गीता में बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। इसके बाद किताब के लेखक श्री संजीव श्रीवास्तव ने किताब के बारे में बताया कि ये किताब गीता का एक ऐसा सिंपल वर्जन है जिसे सभी लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। प्रैक्टिसिंग गीता इज एक्सपीरियंसिंग गीता। गीता का अनुभव ठीक है, करना चाहेंगे? एक क्षण की बात है, एक क्षण में मैं आप सबको गीता का अनुभव कराने का वादा करता हूं। करेंगे? करना है तो एक बार जोर से बोलिए, आज आप खुश हैं क्योंकि प्रभु का संदेश आपको प्राप्त हुआ। अगर आप ये पूरे जोरों से बोल सकते हैं तो आप समझ लीजिए भगवान कृष्ण ने जो गीता में 700 श्लोकों में कहा है उसका आपने इमीडिएटली अनुभव कर लिया। एक श्लोक नहीं पढ़ेंगे। कर सकते हैं? जो नहीं बोल रहे वो शायद मेरी दूसरी बात से सहमत हैं। चलिए आप यही बोल दीजिए कि आज आप दुखी हैं। क्या बोलना चाहेंगे? आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। जिस दिन आप इस बात को इस फ्रीडम को समझ जाएंगे, जो गीता ने कहा है वो यही है बस। मैं पूरी पुस्तक के माध्यम से खाली यही संदेश बोलता हूँ। मैं ना किसी श्लोक के ऊपर हूँ ना किसी उस पे हूँ, मैं खाली गीता के अनुभव की बात कहता हूँ। गीता को अनुभव करना है तो जिस दिन आपके अंदर में ये भाव आ जाए कि मैं बोल सकता हूँ, मैं इस समय खुश हूँ और सारी दुनिया को बता सकता हूँ, मेरा रोम रोम चिल्ला के कह रहे हैं मैं खुश हूँ, गीता का अनुभव हो गया, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और जिस दिन मैं कह सकता हूँ मैं दुखी हूँ, उस दिन ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ऐसा दिन आता नहीं है, युग लगते हैं ये स्थिति प्राप्त करने में। तभी हमें प्रभु गीता जैसा ग्रंथ देते हैं। प्रभु ने तो आधा घंटे से कम में गीता बोल दी और हम उसके बारे में अध्ययन करते करते उम्रें लगा देते हैं। कितनी सदियों से इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम गीता के नज़दीक पहुंचते हैं? प्रभु के संदेश के प्रति पहुंचते हैं? क्या हमने उसका अध्ययन किया अथवा नहीं किया, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। मेरा एकमात्र है अपने जीवन को गीता के अनुसार ढालना। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। किसी श्लोक की ज़रूरत नहीं है, किसी श्लोक को समझने की ज़रूरत नहीं है। मात्र अपने जीवन को गीता के अनुसार जीना सीख लो। गीता का अध्ययन पूर्ण है। यही मेरा संदेश है इस पुस्तक में। आदिकाल से मनुष्य परम शांति और आनंद की खोज करता रहा है। सांसारिक भोगों को भोगते भोगते मानव समस्त जीवन बिता देता है, किंतु परम सुख प्राप्त नहीं होता। मानव जीवन का परम उद्देश्य धर्म पर चलते हुए मोक्ष को प्राप्त करना है। श्रीमद् भगवद गीता
साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। जीवन कैसे जिया जाए तथा मनुष्य की प्रत्येक समस्या का समाधान भगवद गीता में मिल जाएगा। आज संसार में इससे अच्छी व ऊंची पुस्तक अध्यात्म में नहीं है, वेदों और उपनिषदों को छोड़कर। हमने बचपन से सुना है कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। अब हमने जाना और माना, इसमें 1% भी संशय नहीं है कि हमें हमारे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे सैकड़ों अथवा हजारों वर्ष या जन्म क्यों ना बीत जाएं। हम अच्छे कर्मों का फल अच्छा तथा बुरे कर्मों का फल बुरा अवश्य ही भोगना पड़ेगा। गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायाया। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में भेजता है। श्रीवास्तव सर जी और आशिमा जी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने भगवद गीता को सरल और आसान शब्दों में एक्सप्लेन किया है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन गीता के 5 श्लोक या कम से कम 1 श्लोक हिंदी सहित अवश्य पढ़ने चाहिए। उसके अर्थ को जानना चाहिए और उसके अनुसार जीवन चलाना चाहिए, यदि हम परम शांति और आनंद चाहते हैं। जय श्री कृष्ण। इसके बाद कार्यक्रम में हुई प्रश्नोत्तरी श्रृंखला, जिसमें कार्यक्रम में आए लोगों ने अपने मन में आए जिज्ञासाओं के समाधान जैन आचार्य विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज और श्री संजीव श्रीवास्तव जी से पूछे और उनको उत्तर कुछ इस प्रकार मिले। बहुत बार अंधविश्वास में धर्म के लोग ये क्यों कह देते हैं कि जितना लिखा है उतना ही जीना है, वो तो डेस्टिनी हो गई। तो जो गीता में लिखा है साइंटिफिक है, मैं उससे एग्री करता हूँ। तो ये कंट्रेरी है, इस पर थोड़ा प्रकाश। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्म में जो चेष्टा है वो भी सही हो, ये नहीं कि रात के 12 बजे तक काम कर रहे हैं और वह भी नहीं, तो वो कर्म कोई भी एक लिमिट लगाता है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्न अवबोधस्य, सोना उठना भी रेगुलेटेड होना चाहिए। योग भवति दुखा, ऐसा योग दुख को दूर करता है। तो ये तो एक राइट युक्त मतलब सही, रेगुलेटेड, राइट अमाउंट, डिसिप्लिन्ड लाइफ आप लिव करें। डिसिप्लिन्ड लाइफ से डेफिनेटली लाइफ की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं दे गेट रिजॉल्व। तो ये एक डॉक्टर से भी आप पूछ लीजिए, किसी भी डॉक्टर से, वो भी यही कहते हैं कि आप रेगुलेटेड लाइफ लिव करो, आप डिसिप्लिन्ड लाइफ लिव करो, देन योर लाइफ लेंथ इंक्रीजेस। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये राग और द्वेष का दमन की आपने बात की है, तो द्वेष का दमन तो फिर भी आसान है, और राग का दमन बहुत मुश्किल है। और राग जो है वो नए नए उठते रहते हैं। द्वेष तो पता है कि इस चीज़ से द्वेष है, इसको तो इग्नोर किया जा सकता है, पर राग तो अपने अंदर से ही उठते जाते हैं। तो राग का दमन कैसे? देखिएगा, एक तो बात याद रखिएगा, राग और द्वेष दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, अलग अलग नहीं हैं। अगर आपके दिल दिमाग में किसी के प्रति राग है तो पक्षपात होगा होगा होगा। यदि उस पक्षपात में आसक्ति है तो वो राग है। उससे विपरीत यदि दूसरे पक्ष के प्रति आपके दिल में विद्वेष है तो वह द्वेष है। अब यदि आप एक से पक्षपात करते हो तो निश्चित किसी उसके विपरीत दूसरे पक्ष से आपके दिल में द्वेष होगा 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 ही होगा। जैसे कि अगर अभी आपको ठंडी का समय है ना, कंबल अच्छा लगता है, अगर कोई हीटर चालू कर दे अच्छा लगता है, और यदि कोई एयर कूलर चालू कर दे तो, जबकि दोनों चीजें एक ही पंखे से निकल रही हैं। हवा के ही दो रूप हैं। अभी आपको गर्मी की जरूरत है, इसीलिए आपको कूलर नहीं चाहिए और आपको हीटर चाहिए, गर्म हवा चाहिए, उसके प्रति आपका राग हो गया। ठंडी हवा यदि मैं चालू कर दूं तो राग और द्वेष ये दोनों चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं।
और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, राग की अपेक्षा भी द्वेष आपके दिल में ज्यादा चुभा रहता है। राग तो फिर भी भूल जाओगे यदि आपको किसी के भी प्रति विद्वेष है। 10 साल के बाद में भी वो आदमी आएगा ना, आप नहीं भूलोगे। राग, यदि रागी जिसके प्रति आपने प्रेम किया था, वो यदि कभी हुआ 5-7 साल के बाद, आप भूल भी जाओगे। परंतु विद्वेष एक इतना गहरा संस्कार है, इतना दिल के अंदर गहरे धंस जाता है, आप जिंदगी भर भी नहीं भूल सकते। कभी कभी तो इतना गहरा भी धंस जाता है। राग की अपेक्षा द्वेष अधिक भयंकर है। द्वेष दूरी बनाता है, राग नजदीकी बनाता है। नजदीकी और दूरी दोनों ही चीजें खतरनाक है। ये बाहर की गंदगी तो हम साफ कर लेते हैं, मगर अंतर मन में जो गंदगी है, बुरे विचार है, बुरी भावना है, द्वेष है, इसको मिटाने का, इसकी सफाई का सुगम सरल क्या रास्ता है जो सच्चे आनंद की ओर हमें लेके जाए? इंद्रियों की गंदगी उतना महत्व नहीं रखती जितना कि मन की गंदगी का महत्व है, या मन की सच्चाई और अच्छाई का महत्व है। परंतु मन में जो सच्चाई, अच्छाई, बुराई जो कुछ भी है ना, इंद्रियों को आभारी है। इसीलिए सबसे पहले इंद्रिय दमन, इंद्रियों के विषयों का शमन, यदि यह हम कर लेंगे ना, तो मेरे देवता यह प्रयोग करेंगे तो अनुभव होगा कि इंद्रियों के संयमन से कितना लाभ होता है। हम खुद ब खुद पहचान जाएंगे, हम खुद ब खुद अनुभव कर सकेंगे। ये बात तो अनुभव करके जानी जा सकती है, केवल पुस्तकों को पढ़ करके या कानों से शब्दों को सुन करके काम नहीं चलेगा। हाँ, इंद्रिय दमन, इंद्रिय विषयों का शमन आवश्यक है। मन के संयमन के लिए भी, वाणी के संयमन के लिए भी, काया के संयमन के लिए भी जरूरी है इंद्रियों का दमन। आज की तारीख की सबसे बड़ी समस्या हमारी इंद्रियों के विषयों की परवशता, पराधीनता है। ये बात जो किसी भी, चाहे अवतारियों ने कही हो, चाहे अनुभवियों ने कही हो, चाहे तीर्थंकर भगवंतों ने कही हो, वो बहुत सच्ची प्रतीत होती है जब हम अनुभव की दुनिया में जाते हैं। तो इसके बाद हमारे चैनल से बात करते हुए भगवद गीता सॉन्ग एटर्नल के दोनों लेखकों ने अपनी किताब के बारे में बताया कि इसको लिखने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था, क्या विचारधारा थी और क्या कारण था। गीता एक टाइमलेस ग्रंथ है जो कि लोगों ने सदियों से पढ़ते रहे हैं, लेकिन जो आम जनता है, आम लोग हैं, वो इससे काफ़ी दूर रहे। हमारे तो मन में खाली एक विचार था शुरू से, आज से नहीं, काफ़ी पहले से, कि ये कैसे हर एक के पास पहुंच सके। अध्ययन किया, करते रहे, और जब समय मिला, स्पेसिफिकली जब लॉकडाउन के समय पे हमारे पास समय था, तो हमने इसको एक साकार रूप देना शुरू किया और ये पुस्तक लिखी गई। भगवद गीता एक ऐसी चीज़ है, ग्रंथ है, जो आपको ट्रांसफॉर्म नहीं करता है। आप जैसे हो वैसे जीने की कला सिखाता है। आप जैसे हो वो बताता है कि आप वो करो जो आपके स्वभाव के अंदर है। आप उससे हटके करोगे तो आप फेल करोगे। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो कि बिना किसी ट्रांसफॉर्मेशन के आपको प्रभु से मिला देगा, मोक्ष तक के ले जाएगा। तो इस बात को हम इस बुक में उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको भगवद गीता को जानने, समझने, पढ़ने, फॉलो करने के लिए अपने जीवन से दूर नहीं, अपने जीवन में वापस आना है। जीवन में रहते हुए जो आप आम तरीके से करते हैं, आम तरीके से कर सकते हैं, वो करेंगे, और जब आप वो करेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो भगवद गीता ये नहीं कहती कि आप उम्र बाद में करोगे, आप संन्यास लेके करोगे। भगवद गीता ये कहती है आप जो कर रहे हो वो करो,
लेकिन एक ऐसे तरीके से करो कि आपको एंड रिज़ल्ट में जो आप प्राप्त करना चाहते हो। अब जो मोक्ष जिसको कहा गया वो क्या है? मोक्ष एक, आप अगर एक भूखा व्यक्ति है उसके लिए मोक्ष कब प्राप्त है? जब उसको भरपेट खाना मिल जाता है। एक दुखी व्यक्ति है उसको मोक्ष कब प्राप्त हुआ? जब वो सुख प्राप्त करता है। वो क्या युवा के लिए अलग है, एजेड के लिए अलग है? सबके लिए एक ही है। चाहे एजेड हो, चाहे आप वो हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे व्यापारी, कोई भी हो, सबके लिए जीवन का एक ही उद्देश्य है, किसी भी तरीके से उस असीम सुख को प्राप्त करना जिसे मोक्ष कहा गया है। ये मोक्ष को समझाता है। मोक्ष ये नहीं है कि मैं कहीं यहाँ से निकल के किसी दूसरी दुनिया में पहुँच गया हूँ, वो सब मोक्ष नहीं है। मोक्ष वो है जहाँ पे आप ऐसे सुख के सागर में तैर रहे हैं, एक ऐसे ब्लिस के को अनुभव करते रहते हैं जो कि हमारे जीवन का उद्देश्य है। और ये बात गीता प्रमाणित करती है। गीता जहाँ पे कही गई वो कहती है आप अपने कर्मों में लगो, कर्म करते रहो, आपको सुख प्राप्त होगा। आप कर्म से भाग जाओगे, आपको सुख से दूर होते जाओगे। ये गीता है। ये जो गीता है आप देखें कि ये 10 वर्ष के बच्चा भी जो है इसे बहुत ही खुशी से, बहुत ही प्रेम से पढ़ेगा। उसके लिए छोटी छोटी कुछ कहानियाँ हैं। मतलब आप गीता में जैसे 40 से 50 इसमें छोटी छोटी कहानियाँ हैं जिसके माध्यम से जो भी कोई इशू है, पॉइंट है, उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। तो अगर बच्चा उन स्टोरीज़ में भी बीच में कुछ पढ़ता है, कुछ कहानियाँ पढ़ता है, तो उसमें उसकी रुचि बनी रहेगी। और इसमें बहुत सारे जो हैं 80 साल के भी अगर कोई हैं वो भी अगर पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि इसमें फ़िलॉसफिकल डेप्थ भी है कि जो कोई चीज़ है, श्री कृष्ण जी ने हर सवाल का जवाब, एक चाहे बच्चे का हो, चाहे बड़े का हो, चाहे यंग मैन का हो, सबका सवाल का उत्तर जो है इस गीता में दिया है। क्योंकि इसके एक एक श्लोक में इतने सारे मल्टीफेसेटेड चीज़ें हैं, एक एक श्लोक के अनंत जो है मतलब हैं, अनंत तरह से उसे समझा जा सकता है। तो हर श्लोक, हर लाइन इतनी मीनिंगफुल है कि ये हर बच्चे के लिए, बड़े के लिए, बूढ़े के लिए, सबके लिए उसमें अनंत तरह की उसमें जिज्ञासा को जो है आपकी सेटिस्फाई करेंगी, आपके प्रश्नों का जवाब है उनमें। तो इसलिए ये गीता जो है उसका जो हमने जो मीनिंग दिया है वो सबके लिए रेलेवेंट है। और कोई भी जो है इसे पढ़ेगा, 10 साल का भी जो बच्चा थोड़ी सी इंग्लिश जानता है वो पढ़ेगा, वो भी इंजॉय करेगा। 80 ईयर्स का जो है वो उसकी फ़िलासफ़ी, वो उनकी फ़िलासफ़ी में जाएंगे। जो हमारी कल्चर है उसमें हमने शुरू से जो है स्टोरीज़ के थ्रू नॉलेज इम्पार्ट हुई है। तो वो जो स्टोरीज़ है वो पहली बार एक कथा के रूप में समझी जाती हैं, बाद में उसका गहरा मीनिंग समझ में आता है, उसके बाद में और गहरा मीनिंग समझ में आता है। तो ये हमारा ये संस्कृति रही है कि एक चीज़ को बहुत ही पहले सिंपल तरीके से कहा जाए, उसका बाद में जो परतें हैं वो खुलती जाते हैं और वो जब एंड तक, जब आपकी लाइफ के एंड तक जो है आपकी सारी परतें आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसीलिए हमारे जितने भी उपनिषद हैं और वेद हैं उनमें हमेशा लिखा है कि आप जो है 100 वर्ष की आयु के लिए अपनी इच्छा करें, और ताकि 100 वर्ष में आप जो है सारा ज्ञान, सारी चीज़ें जो हैं अपनी लाइफ में, अपने फेजेस में चलते रहें। और कार्यक्रम के समापन के बाद कार्यक्रम में आए लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। गीता के ऊपर तो बहुत लोगों ने, विद्वानों ने जो है इतनी सारी कमेंट्रीज़ वगैरह लिखी। आप देखेंगे शायद मार्केट में तो आपको पता चलेगा कि हज़ारों किताब जो है इसके ऊपर छपी हुई है। बाकी इन लोगों ने जो प्रयास किया है इस पुस्तक को मतलब बहुत सिंप्लीफाई किया है कि हर मतलब आम आदमी के लिए ये समझ में आ जाए उनकी। इसमें श्लोक भी दिए हुए हैं गीता के, उसके आगे अंग्रेज़ी में अनुवाद भी है उसका। तो उसके कारण मैं समझता हूँ कि किताब सबके लिए उपयोगी होगी, क्योंकि इसमें जीवन का जो है कैसे जीवन को जिया जाए और क्या सारा सार वो इसमें दिया हुआ है। तो आप पढ़ेंगे, कोई भी जो भी पढ़ेगा इसको, उसको वाकई अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। संजीव श्रीवास्तव की और आशिमा जिंदल की नॉलेज देखकर मैं खुद मंत्रमुग्ध हूँ। उसका कारण ये है कि मैं खुद भी सरकारी मुलाजिम रहा हूँ और
ये दोनों सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद इतना धर्म, आस्था और गीता के इतने करीब पहुंच गए हैं। काश इनको फॉलो करने वाले और भी लोग हों, जिससे कि एक प्रकार से सब लोग जो है मनुष्य बन जाएं। मनुष्य का मतलब ना धर्म से है ना अधर्म से है। जब धर्म और अधर्म हमारे मन में से वैमनस्य निकल जाता है तो हम मनुष्य हो जाते हैं। मैं चाहूँगा कि सब लोग इनका अनुसरण करें और मनुष्य बनकर इस जर्नी में इस देश को आगे बढ़ाएं। आशा है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ लेती हूँ आपसे आगे, आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।